तो Hello हम friends. हेलो फ्रेंड्स हम Continuing to last video, which was kind of very abstract. I will not call it vague. it was very abstract. It was very abstract because we are talking in terms of things that are, not very, it cannot be said in these words. That can be, Very hard to say things you're talking. So we are going to take a little academic approach yeah. this time. So there is this of the Shaiva Darshanas, especially when we talk about one of them, which is the Kashmir Shaiva Darshan, and one way of explaining that out of the three ways that it can be explained is called Pratyabhijna Darshan. And Pratyabhijna means recognition. Pratyabhijna, परिचय, खुद का ही परिचय. तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है कि हम जो भी हैं, हम एज कॉन्शियस बीइंग्स, ये कुल मिला के 36 तत्वों से बने 36. It's a walk of Shiva from first element to 36th element. First is Shiva and 36th is the Prithvi. And in Right. this body, both the first element and 36th element are together. And All it of is them are together. bound by this breath. Yes. So means इस body के अंदर जो Subtlest form is the Parashiv हाँ. and the grossest form is Prithvi, हाँ. Earth, which is Right, the out of the 5 elements, the grossest. All 5 are inside this 36. So we will roughly tell the 36 and tell that all of them, the subtlest becomes grossest by the influence of Shakti. yes. And each Shakti is named, is given a particular name. Yes, as we said, Ichha, so there is something called Ichha Shakti. As we said Gyan, there is a Gyana Shakti. As we said Kriya, there is a Kriya Shakti. So the deepest consciousness, which is two things, Shiv and Shakti, Parashiv and is basic Shakti, which is called Chit Shakti. Actually, difficult. That Shakti is not given a name, it's just called Shakti. So these two together, when they are together and they are perceiving, the thing that they perceive is Ichha. When what they are perceiving, they include inside itself, it becomes their Ichha Shakti. So Shiv Shakti together becomes Shakti when Ichha becomes Shakti. The Shiv Shakti together with Ichha becomes what is called Sadashiv. The Sadashiv looks at as Gyan. So Sadashiv as a Shiv is the perceiver, the Pramata, which is perceiving Gyan. It has a blueprint of universe. या आते पहले अपन पैटर्न पूरा करते हैं, बहुत दूसरे क्योंकि वाइड नहीं घुसना है एक बार. तो the Shiv along with Shakti having Ichha is called Sadashiv. The Sadashiv is the perceiver, and what is it perceiving is knowledge, Gyan. When Sadashiv with its Gyana Shakti is together, includes the Gyan Shakti inside it, now the Shiv and Shakti together with Ichha Shakti, which is Sadashiv, together with Gyana Shakti is what we call Ishwar. So which has power to create. Now it can perceive. So when Ishwar is the Pramata, Ishwar is the perceiver, what is it perceiving? Action, Kriya. So Kriya Shakti is what the Ishwar has. So whatever we have a perception of Ishwar, God, etc., is somebody who can do something in this world. Okay. The Shiv is much deeper than that, 4 layers deeper than that. Okay. Ishwara is a form of Shiva which has an Ichha and which has a Gyan. And Ichha also. And Ichha also. Ichha and Gyan both. Gyan. And it does action. So when you include the action, when the Ishwara includes the Kriya Shakti inside it, this is what is called the Shuddha Vidya. It's called Shuddha Vidya. That state of Shiva is called Shuddha Vidya when it has all the three. It has pure knowledge of everything in a way, including action. It has included action inside it. And till this point, there is no delusion. This form of the Shiva is in the पंचकृत्यकारी शिव हमने पिछले वीडियो में कहा था. उसकी जो पहली 3 एक्टिविटी है कि वो क्रिएट करता है, सस्टेन करता है और डिस्ट्रॉय करता है, ये करने के लिए इच्छा ज्ञान शक्ति काफी है. अभी तक सब कुछ शुद्ध है, अभी तक कोई डिल्यूजन नहीं है. जो पता है वो क्लियरली पता है शिव को. इसके बाद उसे छुपाना है खुद को, इसके लिए एक अलग शक्ति चाहिए. इसको हम कहते हैं माया. कि वो खुद को भूल जाता है, इसकी शक्ति है उसके पास.
और माया के आने के बाद विद्या शुद्ध नहीं रहती, अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम कह रहे थे कि एक बन के देखो तो दो दिखेगा, ये जो द्वैत दिखता है दुनिया में ये माया से, क्योंकि मैं छुपा लेता हूँ कि मैं वही शिव हूँ जो एक ही है। एग्जैक्टली। ओके, तो अद्वैत दर्शन जो लोग वेदांत नाम आपने सुना होगा, वेदांत दर्शन कहता है कि एक ब्रह्म है और एक माया है, जिसको अद्वैत ब्रह्म कहता है, उसको तोड़ के समझाता है शैव दर्शन एज शिव, शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये मिला के ब्रह्म है जो अद्वैत का ब्रह्म है, इसके बाहर माया है, इसकी शक्ति माया है। ओके। ओके, तो शैव दर्शन ये अद्वैत के ब्रह्म को अंदर से देखता है। अच्छा, माया को मिला लो तो फिर क्या है? वो शिव जो शुद्ध विद्या है और वो माया को इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, तो फिर पुरुष बनाया है। वो पुरुष उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर जीव है, वन पर्टिकुलर, जो अपने आप को सेपरेट मानता है बाकी सब कॉन्शियसनेस, चाहे वो जानवर हो चाहे पौधा हो, जानवर हो, पौधा हो, इंसान हो, कोई भी कॉन्शियस बीइंग जो अपने आप को अलग जानता है, जिसमें खुद की मेमोरी है। मतलब आप यदि धान का यदि एक बीज बोओगे तो धान ही इसलिए निकलता है क्योंकि उसके पास खुद की मेमोरी है। मेमोरी माया से है भाई। हाँ। माया के पहले मेमोरी की जरूरत नहीं है, शुद्ध विद्या है, हाँ। सब कुछ पता है, सर्वज्ञ है शिव, हमेशा उस स्टेट में से सब कुछ पता है, उसको मेमोरी रखने की जरूरत ही नहीं है। मेमोरी रखने की जरूरत ही तब पैदा होती है जब ये माया है कि मैं अलग हूँ। एग्जैक्टली। अब हम कुछ बता पाए तो ये सब which is not very abstract. making sense. So all of this is शक्ति। तो अभी तो हम माया शक्ति पे हैं, इसके बाद की शक्तियाँ हैं जो इसके मोर सेटलर फॉर्म में टूटती जाती हैं। तो जो पुरुष की शक्ति है उसे हम प्रकृति कहते हैं, कि जब पुरुष अपने आप को एक सेपरेट जीव मान लेता है तो जो बाकी बच जाता है दुनिया में, जो आउटसाइड वर्ल्ड के परसीव आइटम्स हैं, वो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति। अब अगर पुरुष प्रकृति को अपने अंदर देखने लगता है जो, तो उसे क्या दिखता है? तो उसका प्रमेय क्या है? एज अ परसीवर जब पुरुष और प्रकृति टुगेदर हैं तो उन्हें परसीव्ड क्या दिख रहा है? तो उन्हें अपने अंदर की तीन चीजें दिख रही हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। तो हाँ, तो पुरुष और प्रकृति साथ में क्या है? चित्त। पुरुष और प्रकृति साथ में जो है वो चित्त है, ये भी ये आत्मा चित्तम। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो 36 तत्व हैं, अभी तक हम आए हैं शिव, शक्ति, इच्छा, ज्ञान, कर्म, माया, पुरुष, प्रकृति के अंदर अभी घुसेंगे। एक्चुअली हमने माया के बाद 5 कुंचक नहीं बताया। हाँ, वो आगे आएगा। नहीं, लेकिन उसके बाद पुरुष प्रकृति है। तो हाउ डज माया वर्क, इसकी डिटेल है, हम इस पे वीडियो बनाएंगे, हम माया नाम का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हम घुसेंगे, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि कुंचकों में घुसना पड़ेगा। बट पुरुष है, प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति टुगेदर को अपने अंदर की चीज़ें समझ में आती हैं जो बुद्धि, अहंकार और मन है। इन तीनों के साथ मिलकर हमें इंद्रियां दिखाई देती हैं। इनके बाहर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाहर तन्मात्राएं हैं, जो और तन्मात्राओं से बाहर के दुनिया के 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें से आखिरी पृथ्वी है। इनको पूरा गिनते हैं तो 36 होता है। 36 होता है। और ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसकी ग्रेटनेस ये है कि परशिव से लेके 36वें पृथ्वी तक सब कुछ है इसमें, सब कुछ है इसके अंदर, इस बॉडी में। ये हमेशा हर जीव को नहीं मिलता, जानवर की बॉडी में नहीं है कुछ, आकाश रूपी इंद्रिय नहीं है उसके पास, वो शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकता, हम निकाल सकते हैं। तो ये 36 हैं, और ये 36 होने की वजह से शिव इस ग्रॉस फॉर्म से वापस सटल तक जा सकता है। तो जिस रास्ते से वो नीचे आया है उस रास्ते से ऊपर जा सकता है, और ये आना जाना लगा रख सकता है, ये उसका स्वातंत्र्य है। वो जब चाहे वो वापस पैदा हो जाता है, वो वापस चला जाता है, ठीक है। और तो कुछ इंटरेस्टिंग जो स्वातंत्र वाला जो पार्ट है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि जीनो इफेक्ट है, और क्या है वो, इस पे बाय द वे सीरियस काम हो रहा है। और ये टर्मिनोलॉजी भले ही साइंटिस्ट लोग अप्रिशिएट ना करते हो, बट देयर इज नो डिनाइंग नाउ आफ्टर देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, there is no denying now that when a conscious being is perceiving something, it is changing, and when it is not perceiving something, it is not changing. There are many experiments of that sort. Right. So the Shiv Shakti is a terminology by which you explain the possibilities which can happen when the conscious being is involved.
and it has a step-by-step framework that the Pratyabhigya Darshan gives. Right. Okay. So there is an experiment where radioactive material is decaying. Yeah. And if it is, let us say it is decaying with a half-life of 1 hour. In 1 hour it becomes half. Whatever. अगर 1 किलो है तो वो 500 ग्राम बचेगा. नहीं ऐसा नहीं होगा. half-life मतलब हाँ रेडिएशन कम आएगा. इतने इंटेंसिटी का वेरिएशन है तो उतने कम इंटेंसिटी का वेरिएशन हो जाएगा. तो अगर आप मेजर कर रहे हो, if you put a aluminum measurement device or a zinc measurement device around the entire material and say you are capturing, let us say it's a beta decay, electron is being decaying, you capture all electrons that it is decaying and you try to measure them. Suddenly the half-life becomes more than 1 hour. Yes, it changes. It changes. The moment there is an observation which is happening, then the time stops for it in some sense. अरे हम टाइम पर नहीं आए क्योंकि हमें 5 कुंचकों में काल है. हम आएंगे, माया से 5 चीज़ें बनती है, उसमें से एक टाइम है. तो हम वीडियो में घुसेंगे तो इस पे आएंगे. The wheel of Maya कहते हैं. Wheel of Maya कहते हैं उसे. ठीक है. तो अभी हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ये, इसमें थोड़ा सा सेंस भी है. तो while we drill more, हम धीरे धीरे प्रत्यभिज्ञा दर्शन को के फंडे खोलेंगे. अभी आज हमने जो 2 वीडियो बनाए हैं ये फेयरली एब्स्ट्रैक्ट है और ये वाला सेकंड थोड़ा कम एब्स्ट्रैक्ट है. तो हम ज़्यादा कॉन्क्रीट टर्म्स में ही समझाने की कोशिश करेंगे आगे वीडियोस में. ठीक है. आज मैं बहुत बोल लिया हूँ. नहीं ठीक है. चलिए.